खोल के सुन ले नकली, समय रहते हुए ट्रॉफी नहीं लौटाई तो जबड़े के अंदर से छीन के लाएंगे, जैसे हमने एक बार क्या किया था, याद है ना। ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਲਿਫਾਫੇ ਮੇਰੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲੈ। ਲਾ ਲੈ ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਟਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। World has seen two things of this engagement, air engagement. The first thing they noticed was that air-to-air engagement, which is the key mission of any air force to acquire air supremacy, that was done only by the Pakistan Air Force. The Indian Air Force has not, at least I am not aware of, done any air-to-air engagements. That is one. Now, air-to-air engagements are a difficult thing to do, and especially with the multi-domain operation, a new concept which has been explained by the Pakistan Air Force to the world. So, that is all credible, and this is the reason that even the Pakistan Air Force Chief, Air Chief Marshal Babar, he was immediately invited in Washington to explain how they had done the multi-domain operations, and the PLAF Chief, PLA Air Force Chief also visited the air headquarters in Pakistan to get a briefing on how it was done. That's point number। मेजर गोबर आर्या की भी सुन लें। भारत अगर अचानक पाकिस्तान को हिट करता है तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई मसला नहीं, बस मिसाइल ठोको और ट्रंप का फोन आए तो बोलो आप ही जंग बंदी के मसीहा हैं और वो खुश हो जाएगा। बैनुल अक़वामी मीडिया क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए गए हैं? परवीन साहनी का कहना है इसकी वजह यह है कि इंडिया कोई सबूत पेश नहीं कर सका, जबकि तमाम बड़े ममालिक के पास सैटेलाइट सर्विलेंस मौजूद है जिन्होंने तमाम जंग देखी है जिसमें पाकिस्तान का दावा सच साबित हुआ है। भारतीय फजाइया के सरबराह और हुकूमत जो चाहे कहते रहे, मगर असल सवाल ये है कि दुनिया पाक भारत जंग को किस नज़र से देखती है। फजाइया के सरबराह ने नुकसानात को मनोहर कहानी करार देकर दुनिया को कायल करने की कोशिश की, मगर बगैर सबूत के। ये मौक़िफ़ नाकाबिले एतबार है। ऐसे बयानात न सिर्फ गैर संजीदगी जाहिर करते हैं बल्कि भारत की फ़ज़ाई सलाहियत और पेशा वराना मेयार पर भी सवालात उठाते हैं। पूरी दुनिया ने पाक भारत जंग में 2 बातें वाज़े तौर पर देखी हैं। पहली ये कि फ़ज़ाई बर्तरी हासिल करने वाली एयर टू एयर कार्रवाइयाँ सिर्फ पाक फ़ज़ाइया ने की, जबकि भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से ऐसी किसी कार्रवाई का सबूत नहीं मिला। दूसरा ये कि ये मिशन जदीद मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के तहत अंजाम दिए गए, एक ऐसा जंगी मॉडल जिसे पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया के सामने मुतारिफ करवाया। मैं कच्छ की धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, आपके जनरल का ऐसा कर्ज है मुझ पर जो मैंने हर कीमत पर चुकता करना है। वो कर्ज क्या है? सुन लो पाकिस्तान के लोगों, भारतीय सेना ने 6 मई की रात न तो किसी पाकिस्तानी शहरी और न ही किसी फौजी अड्डे पर हमला किया था। भारतीय सेना का एक ही मकसद था, वो था दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाना। मगर बदले में आपके जनरल ने ऐसा कांड किया है कि मोदी की आत्मा अभी तक बदले की आग में जल रही है। तुमने हमारे सैनिकों पर हमला करके भारत को जो चोट पहुंचाई है, मोदी इसका बदला लिए बगैर अब रुकने वाला नहीं। जंग अभी खत्म नहीं हुई, अब जंग पूरी तैयारी से होगी और इस बार जंग सीधी पाकिस्तानी सेना से होगी। ਟੀਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਰਟਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਲਕ ਟੁੱਟੇਗਾ।
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਵਿਦਮਾਨ ਨੇ। ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਨ ਮੈਨ ਰੂਲ ਹੈ, ਕੁਆਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 15 ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਤਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕੁਛ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਬਦਲੋ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ 43 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 43 ਲੱਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਗੁਆਂਢ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਸਨ ਕਰੇਗੀ। He can decide and the government can decide what they want. The reality is what does, or the issue here is what does the world make of it? That is more important. What does the world make of Operation Sindoor, the 4 years war of which the air campaign or the attacks, air attacks were most important? That is important for India. So you're saying that by dismissing India's losses as Manohar Kahaniya, he's not necessarily convincing the world that there were none. No, they are not convinced at all because no evidence, nothing has been given, or he doesn't even want to talk about it. In fact, yes, In fact, he goes to the extent of saying that it is good that they should keep guessing how many of our aircraft, though if they think that 15 were downed, then they will cater for 15 less in their assessment when next they fight. I mean, I don't expect an Indian Air Force chief to say all these things. It did not impress you, that answer? No, not at all. I mean, not befitting an Air Force chief. Not at all. So it's not befitting an Air Force chief? Yeah. पाकिस्तान को बेचने का प्लान है और बलूचिस्तान को दोबारा बेचने का प्लान है। ये आसिम मुनीर का प्लान है, ये शहबाज शरीफ का प्लान है। बलूचिस्तान में चाइनीज को बसाकर खुश नहीं था पाकिस्तान, बलोचों का खून चूस के खुश नहीं था पाकिस्तान। अब अमेरिकन को बैठाना चाह रहा है बलूचिस्तान के अंदर। चाइनीज तो है ना जो वो ठीक है सर, वो ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे देते हैं, असली मालिक तो आप हैं। $1.2 बिलियन का पोर्ट बना दो, कोई पोर्ट शोर्ट नहीं बनाना, ठीक है। यहां पे यूएस मिलिट्री प्रेजेंस होने वाला है। कौड़ियों के दाम ले जाएगा बलूचिस्तान का जितना भी माल है, कौड़ियों के दाम अमेरिका जाएगा। उस रेलवे लाइन के थ्रू बलूचिस्तान की जमीन खोदी जाएगी, माल रेलवे लाइन के अंदर डाला जाएगा और वो रेलवे लाइन आएगी पसनी पोर्ट तक। रिकॉर्ड एक, कभी ये यूरोपियंस को बेचते हैं, कभी सऊदी अरब को बेचते हैं, कभी किसको बेचते हैं, अब बचा कुछ है अमेरिकन को बेचने वाले। ये कह रहा है कि लेस देन 2 टन ऑफ मिनरल्स पहले भेज चुके हैं, यानी कि ट्रेलर दिखा चुके हैं अमेरिकन को कि बलूचिस्तान में क्या क्या है, लूटो सबका सब। अमेरिकन यहां पे पोर्ट बना के माल चोरी करेंगे और यहां पे जो पाकिस्तानी नेवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करा जाएगा और अचानक हिट करता है पाकिस्तान को, जो कि भारत को करना चाहिए। तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे? दोस्तों, मेरा यह मानना है कि इसके कोई भी रिपरकशंस नहीं होंगे। देयर विल बी नो रिपरकशंस। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, अमेरिका चुप था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, चाइना चुप था। डोनाल्ड ट्रंप को यह दिक्कत नहीं है कि भारत जाके पाकिस्तान को तोड़ दे, उसके 4 टुकड़े कर दे। यह डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठोको, रोज ठोको, डेली ठोको। लेकिन जब लड़ाई रुके, जब भी सीज फायर हो, तो उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। दैट्स इट। उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लोग सोचते हैं वो शांति का मसीहा है। वो शांति का मसीहा नहीं है, ना वो बनना चाहता है, वो सीज फायर का मसीहा बनना चाहता है। यानी कि अगर कल भारत ये कहता है कि जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हो रहे हैं और भारत ये चाहता है कि उसको टारगेट करे, तो अगर भारत टारगेट करता है, ट्रंप उठा के बोलेगा मोदी जी आप लड़ाई बंद कर दीजिए, आप लड़ाई बंद करिए, ये आपने गलत करा, आप लड़ाई बंद करिए। मोदी जी बोलेंगे ठीक है ट्रंप साहब, आपने मुझे बोला लड़ाई बंद करो, मैं लड़ाई बंद कर देता हूं। और मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप है, इसकी वजह से मैंने लड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप को यही चाहिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के ऊपर कितने बम गिर रहे हैं, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। और ये चीज अगर भारत सरकार ने पकड़ ली कि पाकिस्तान को ठोकते रहो और उसको क्रेडिट देते रहो, फिर ठोको, फिर क्रेडिट दो, फिर मिसाइल मारो, बोलो तू शांति का मसीहा है, फिर 15-20 मिसाइल मारो, बोलो इसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। दैट्स ऑल ही वांट्स।
ये मैटर आप सेट कर लीजिए और आप पाकिस्तान को फिर सेट कर दीजिए। दोस्तों, लेकिन ये पूरी की पूरी कहानी, हमने बात करी रक्षा मंत्री की, हमने चीफ ऑफ एयर स्टाफ की बात करी, हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयान की बात करी। आपको पता है जून 2025 यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के जिसको कहते हैं कि फिलहाल टेम्पररीली जो रोका गया ऑपरेशन सिंदूर, उसके 1 महीने के बाद डॉक्टर जयशंकर का बयान था। डॉक्टर जयशंकर का यह बयान था कि हम डीप इनसाइड पाकिस्तान जाके टेररिस्ट हाइडआउट्स मारेंगे। व्हाट इज डीप इनसाइड पाकिस्तान? वही जो डॉक्टर जयशंकर ने जून में बोला, वही एग्जैक्टली द सेम थिंग, वही बात करी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने, वही बात करी रक्षा मंत्री ने। रक्षा मंत्री भी ये कह रहे हैं, ठीक है, कि वी विल गो डीप इनसाइड। डॉक्टर जयशंकर ने जून में बोल दिया और चीफ ऑफ एयर स्टाफ क्या बोल रहे हैं? हमें पता है आपने अपने टेररिस्ट ठिकाने अंदर ले गए, पीछे की ओर ले गए, आपने छोटे कर दिया, डीप कर दिया, हम वहां पे जाके मारेंगे। वी हैव द कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक डीप। और दोस्तों, होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है कि होने वाला है, और वो दिन आ गया है व्हेन पाकिस्तान विल बी स्ट्रक अगेन, बिकॉज इंडिया हैज फिगर्ड आउट। चाइना, मैंने क्या बोला, रशिया कुछ बोलेगा नहीं, रशिया से आप तेल खरीदते रहो। चाइना कुछ बोलना नहीं चाहता, चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप प्रिपेयर है। चाइना भी ये कहता है कि इसको बीच बीच में मारते रहो। देखो, चाइना का एक बेसिक फंडा है, चाइना किसी की मदद के लिए हथियार तो दे सकता है, अपने ट्रूप्स नहीं देगा। इंडिया अपनी फील्डिंग सेट कर रहा है। हाल फिलहाल में इंडिया ने क्या करा, आपको पता है। तुर्की को लेकर इंडिया ने क्या करा, आपको पता है। साइप्रस में क्या हुआ, आपको पता है। ग्रीस के साथ क्या हुआ, भारत कौन कौन से हथियार दे रहा है, यानी कि टर्की को न्यूट्रलाइज करने का एक भारत का इनिशिएटिव है। ये तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, चाइना के साथ रिश्ते ठीक करो, रूस के साथ आपके रिश्ते ठीक हैं। और अमेरिका क्या चाहता है, डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहता है, इसके मामले में क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप कभी किसी को यह नहीं कहता कि तुम लड़ाई शुरू मत करो ना, उससे उसको मतलब नहीं है भाई को। उससे यह मतलब है कि जब खत्म करोगे तो बोलना कि साहब भाई आपकी वजह से खत्म हुई है, आप हैं शांति के मसीहा। बस ये चीज, ये पूरी फील्डिंग सेट करके मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया माइट टेक अ शॉट। इट्स वेरी लाइकली दैट इंडिया विल गो इन वंस अगेन इनटू पाकिस्तान। फिर देखते हैं पाकिस्तान। देखिए, मीम गेम आप होना चाहिए, पाकिस्तानी ये मानते हैं। पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, मीम शुड बी ऑफ टॉप क्वालिटी, सो लेट द मीम्स कम। दोस्तों, आज मैंने सोचा वीडियो बनाऊं स्मार्ट बोर्ड पे नहीं, ऑन कैमरा आपसे बात करूं। कारण यह है कि मैंने कभी अपनी जिंदगी में आर्मी चीफ को ऐसा बयान देते हुए नहीं सुना। मैं जनरल द्विवेदी से मिल भी चुका हूं इन पब्लिक गैदरिंग्स, आई हैव मेट हिम इन पब्लिक गैदरिंग्स, एंड व्हाइल ही इज अ वेरी टफ सॉर्ट ऑफ अ जनरल, ही इज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन मैन। इनके पहले भी जो चीफ्स थे, नो चीफ, बिकॉज दिस इज समथिंग आई थिंक एट द टॉप पाकिस्तान को हिट करना है, दैट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट एट द वेरी टॉप। ये जो लैंग्वेज है, ये मैंने